بندہ اچانک آ گیا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, اور سیدھا سادہ بدو. امام غزالی نے لکھا ہے وہ آ کے کھڑا ہوا, سلام لی اور فوراً, کوئی اور بات نہیں کی, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, چونکہ اس نے حال چال بھی نہیں پوچھا, سیدھا سوال ہی کر دیا نا, تو کس نے حساب لینا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے بھئی سیدھی سی بات ہے, حساب تو اللہ کریم نہیں لینا ہے, رب کریم نے حساب لینا ہے. اس نے یہ لفظ سنے نا تو اس کے ہاتھ میں رومال تھا, وہ اس نے کندھے پہ رکھا اور چلنے لگا. تو حضور فرمانے لگے سن تو صحیح, سوال پوچھا ہے, جواب لیا, اب تو جا رہا ہے. کہنے لگا حضور بس اتنا ہی پوچھنا تھا, اگر اللہ نے حساب لینا ہے تو اللہ بڑا کریم ہے, اور کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی کرتا ہے, اس نے حساب لینا تو پھر کرم ہی ہونا ہے. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. حضور خاموش ہو گئے, مسکراتے رہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر گیا, کیا جواب لے گیا, کیا کہہ گیا؟ حضور فرمانے لگے بندہ سادہ تھا, بات سیانی کر کے گیا ہے, بات ٹھیک کر گیا ہے کہ اللہ کریم. یہ حضور نے ہمارے عقائد مضبوط کیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عقائد, حضور نے ہمیں عقیدہ رسالت بھی سمجھایا. آپ کو بخاری مسلم میں اصل ملے گی, سیرت کی ساری کتابوں میں ملے گی. خندق کے موقع پر نا آج لوگوں کا عقیدہ رسالت کے بارے میں بھی بڑا عجیب مفہوم ہے. جس طرح عقیدہ توحید کے معاملے میں حالات خراب ہیں, عقیدہ رسالت کے بارے میں بھی بڑے عجیب معاملہ. کہتے ہیں بس نبی آئے تھے معاذ اللہ اور ہمیں اللہ کا پیغام دے کے چلے گئے, ان کو ایک جو ہے وہ پیغامبر مانو. او خدا کے بندو, یہ اللہ کا پیغام تو لے کے آئے ہیں, پر رب کا پیغام بغیر ذات مصطفیٰ کے سمجھا نہیں جا سکتا. اس کو سمجھنے کے لیے حضور کی محتاجی ہے امت کو. حضور کے بغیر اللہ کا پیغام سمجھا تو آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ وہ ہماری طرح بشر ہیں, دے کچھ نہیں سکتے, کر کچھ نہیں سکتے, یہ آپ عقیدہ رسالت کے بارے میں آپ کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں. آپ اس کو ٹھیک کریں, ان کو مضبوط کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی جب کھدائی ہو رہی تھی تو حضور بھی اس کھدائی میں شریک تھے. آج استاد جی جو بن جائے وہ بھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا, جو سیٹھ صاحب بن جائے وہ بھی کسی کام کو ہاتھ, جسے سر کہلوانے کی عادت پڑ جائے وہ بھی پانی کا گلاس اٹھا کے نہیں پیتا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے خندق کھود رہے ہیں, ایک چٹان نہیں ٹوٹتی تھی تو صحابہ نے کہا حضور نہیں ٹوٹتی, فرمایا کدال مجھے دو. کہتے ہیں ہم نے حضور کو دی, سمجھے تھوڑا دیا. کہتے ہیں حضور نے ایک ہتھوڑا مارا, جب ہتھوڑا لگتا ہے نا پتھر کو تو تھوڑی سی نا چمک نکلتی. کہتے ہیں حضور نے ہتھوڑا مارا تو فرمایا لو بھائی ہتھوڑا یہاں مارا ہے, اور فرمانے لگے لو بھی اللہ نے ملک کے شام کی چابیاں مجھے عطا کر دی, لو کنجیاں مل گئیں, اب شام بھی ہمارا ہے, یہ فتح ہو جائے. دوسرا تھوڑا مارا تو فرمایا لو بھی رب نے یمن کی چابیاں بھی دے دی. یہ نبی کی طاقت ہے, یہ پیغمبر کی. حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے خالی ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ سمجھو, یہ تو ملکوں کے خزانوں کی چابیوں سے بھرے ہوئے ہیں. تیسرا تھوڑا مارا تو فرمایا لو بھی شام کی چابیاں بھی اللہ نے دے دی. ابھی فتح مکہ بھی نہیں ہوا, لیکن کریم رسول نے امت کو بتایا کہ جو نبی کے ہاتھ ہوتے ہیں ان کے اندر بڑے خزانے ہوتے ہیں, ان کے اندر بڑی طاقتیں ہوتی, ان کے اندر بڑی قوتیں ہوتی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے لو اللہ نے مجھے تین ملکوں کی چابیاں دے دی. صحابہ کہتے ہیں وہ بات حضور نے خندق میں کی تھی, لیکن وقت گزرا, حضرت عمر کا زمانہ آیا, اور جب وہ علاقے فتح ہوئے اور ان علاقوں کے ہر شہر میں مدینے والے کے نام کی اذان پڑی گئی, تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ چابیاں واقعی دست مصطفیٰ میں, واقعی حضور کے دست مبارک میں. آپ نے اپنا عقیدہ توحید بھی مضبوط رکھنا ہے, عقیدہ رسالت بھی. اور دیکھیں جس طرح کی تربیت حضور نے فرمائی ہے اس طرح کا عقیدہ. صحابہ کے بارے میں بھی عقیدہ ہمیشہ مضبوط رکھیں. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, مجھے شکوہ اس بندے سے نہیں جو معاذ اللہ صحابہ کی توہین کرتا ہے, وہ تو ہے ہی بدبخت, وہ تو ہے ہی ملعون. لیکن مجھے ان سے شکوہ ہے جو کان لگا کے سنتے ہیں, یعنی جو کہتے ہیں میرے پاس کلپ پہ آپ کو بھیجوں فلانے نے صحابی کے بارے میں یہ کہا ہے, تو میں کہتا ہوں اتنی جرت تیری,
तूने पहले सुना है, अब तू सुनवा रहा है। इतना तो जुर्रतमंद हो गया। ऐसे बदबख्त आदमी की तो बात सुनता है जो जनाब सिद्दीक़ अकबर के बारे में बकवास करता है। ऐसे लोगों की बात सुनते हो जो हज़रत उमर के बारे में गलत ज़ुबान इस्तेमाल करें, जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में गलत ज़ुबान, ऐसे लोगों की हम बात सुनेंगे, इस तरह के लोगों की बात सुनेंगे। वो पता है सैयदा आयशा कौन है? कि जिनकी गोद में सर रखते थे मदीने वाले, सर रखते थे। और करीम रसूल फरमाते थे बाकी अपनी अज़वाज से कि तुम मुझे छुट्टी दे दो, मैं आयशा के घर वक्त गुजारना चाहता हूँ। अब बात को समझे, इतनी बड़ी हस्ती और ये लोगों का रवैया। और आप सुन रहे हैं, अपना अकीदा ठीक करें, ठीक करें। हम तो बचपन में छोटे होते थे ना, तो हमारे अब्बा जी साथ वालों से नाराज हो जाते थे, सगे चचा से भी, छोटे बचपन में। तो हमारे देहाती बच्चों की ये तरबियत होती थी कि कोई आके कहता था ना अंदर से किसी को बुला दे, तो हम कहते थे ऐसे ना लड़े हैं। हालांकि अपनी जाती कोई नाराजगी, यानी वालद के दुश्मन के घर नहीं जाते थे। और तू जनाब सिद्दीक़ अकबर के दुश्मन की बात सुन लेता है, हजरत फारूक आजम के दुश्मन की बात सुनता है, उस्मान गनी, उस्मान गनी। पता ये कौन बंदा है? कि सैयदा आयशा कहती हैं कि सब सहाबा आते रहे, अबू बकर भी आए, फारूक आजम भी आए रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, हुजूर लेटे रहे, उस्मान आए, हुजूर उठे, अपनी तामत मुबारक को हुजूर ने नीचे किया। तो मैंने अर्ज़ की हुजूर बाकी दो आए तो आप बैठे रहे और उस्मान आए, तो फरमाया आयशा मैं उसकी हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। उससे बड़ा भी को बदबख्त है, उससे बड़ा भी को बदबख्त है जो उस उस्मान की हया ना करे जिनकी मेरे नबी पाक भी हया करते हैं। उससे बड़ा भी को बदबख्त है जो हज़रत उस्मान की भी। और आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं ये भी आया था। और कुछ लोगों को ना एक नया तमाशा लग गया, कहते जी मैं बड़ा नरम हूँ, मैं सब जगह चला जाता हूँ। तू क्या बात करता है? तू सब जगह जाएगा? उसके पास जाएगा जो माज़अल्लाह हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के असहाब के बारे में लंबी जुबान करके बात करता है। खुदा का खौफ करें, आप समझें इस बात को। हुजूर ने तो उसका जनाजा नहीं पढ़ाया था जो हज़रत उस्मान का बेअदब था। मर भी जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब पढ़ा है ना तिरमिज़ी शरीफ। आप हुजूर ने फरमाया नहीं जनाजा पढ़ाता, ये उस्मान का बेअदब है। हुजूर तो जनाजा नहीं पढ़ाते और तू मुलाकातें करता है। ये कैसी अजीब पॉलिसी। और इसी तरह से याद रखो, अपना अकीदा ठीक रखना है। सारी ज़िंदगी को बंदा मकाम इब्राहीम पे नमाज पढ़े और रोज़ हजर असवद के बोसे ले और रोज़ खाना काबा का तवाफ़ करे और रोज़ सही करे और रोज़ उम्रा करे, लेकिन हुजूर की औलाद से प्यार ना करे तो बेईमान होके मरेगा। वो ईमानदार मर सकता? ये ज़रूरी है मोहब्बतें, ये मोहब्बतें ज़रूरी हैं। अपने अकायद को, अपने नज़रियात को मजबूत रखें, मेहरबानी फरमाएं। कभी इधर बह जाते हैं, कभी इधर बह जाते हैं। कोई ऐसा काम ना करें। और किसी बंदे के ऐसे, अब तो हमारे यहाँ चूंकि तकरीरें चमकाने का रिवाज है, लोगों ने अपनी अपनी तकरीरें चमकाने, मैं आज बताऊंगा सहाबा की शान क्या। और मैं कहता हूँ तू बैठ जा यार, तू उनकी शान बताएगा जिनकी शान खुद कुरान पाक ने बयान फरमाई है। मैं आज बताऊंगा अहले बैत की शान क्या है, तू उनकी शानें बयान करेगा जो अगर नजर भी आए तो मदीने वाले रसूल के कंधों पे नजर आते हैं। मैं तुझसे शान सुनने की क्या जरूरत? तू वो शान बयान कर जिसमें ये ना महसूस हो कि शान सहाबा बयान हो रही है तो अहले बैत के बारे में कोई कजी है, और अहले बैत की अजमत बयान हो रही है तो सहाबा के बारे में कोई कमजोरी। इस तरह के किसी शख्स के करीब जाने की कोई जरूरत आप मेहरबानी फरमाएं। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बिला वजह छोड़ दी गई हैं। एक बात और मैं बड़े दर्द से कहता हूं, आप काफिर को क्या चेहरा दिखा रहे हैं इस्लाम का कि शुरू से मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, ये आप दिखा रहे हैं। रोज तकरीरें करके ये बताना चाहते हैं, ये सिखाना चाहते हैं आप कि सहाबा और अहले बैत भी नाराज रहते थे जिन्होंने डायरेक्ट नबी पाक से दीन लिया है। अगर वो लोग ही ठीक नहीं थे तो आज बंदे कैसे ठीक हो गए? तो ये बहुत सारी खराबियां जो आज पैदा हो रही हैं, इनका एक ही हल है, एक ही। ये मैं तकरीर आपसे कर रहा हूं, ये बात आपको समझ, एक ही हल है इसका। जो चीज मार्केट में खरीदी ना जाए वो बननी बंद हो जाती है। कौन नहीं समझ आई आपको मेरी बात? जिस चीज को लोग खरीदे ना वो कोई कारखाना बनाता है, कारखाना तो वो बनाएगा जिसकी डिमांड होगी। अगर आप ऐसे लोगों से नाता तोड़ लें जो ये हरकतें करते हैं तो ये काम करने से भी लोग बाज आ जाएंगे। लोग चस्के के लिए सुनते हैं, कानों की लज्जत के लिए। खुदारा ये काम ना करें, खुदारा ना करें, कभी ना करें। हमसे तो नहीं सुना जाता,
आप सुन लेते हैं, हमसे तो बात चेहरे नहीं देखे जाते। हम कहते हैं यार ये शख्स जो सहाबा के बारे में बात करे, अहले बैत के बारे में गलत बात करे। तो हमने अपना अकीदा तौहीद भी तगड़ा रखना है, अकीदा रिसालत भी तगड़ा। और ये जो मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के नज़रियात हैं, ये बड़े साफ़ सुथरे हैं। क्या अंदाज़ है अकीदा रिसालत, कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक। ये अब हमारे यहाँ शेर पढ़े जाते हैं तो वो ना शेर भी बड़ा बुरा हाल है, नात खानी भी, अब अल्लाह ही खैर फरमाए। जो हशर हमारे यहाँ कर दिया गया है ना कुछ शेरी ज़ौक़ है। मैंने एक दफ़ा बड़े मशहूर आदमी से कहा था कि आपने सिर्फ हमें ना, मैं किसी मुश्किल शायर का नाम नहीं लेता, आप सिर्फ मुज़फ़्फ़र वारसी का कलाम ही सुनाएं, हफीज़ ताइब का ही सुना दें। ये तो सादे लोग हैं ना, हमारे दौर के हैं, अभी थोड़ा अरसा पहले गए, ये भी नहीं पढ़ेंगे। ये तो अब नात पढ़ी जा रही है, सोने दा मिलाद मना मेरी फरमाइश थे, ये को नात है? ये हुजूर के शयान शान लफ्ज़ हैं जो आप अदा कर रहे हैं। ये नात सुने फाज़िल बरेलवी से, आला हज़रत से नात सुने। कहते हैं कि माह मदीना अपनी तजल्ली अता करें, माह मदीना अपनी, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। और फिर आला हज़रत का शेर सुनिए, कहते हैं मैं खान ज़ादे कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है। मैं खाना ज़ादे कोहना हूँ, कहते हैं हुजूर मैं आपका ख़ानदानी नौकर हूँ। वो जो ख़ानदानी नौकर नहीं होते, जिनके दादे भी नौकर होते हैं, परदादे भी नौकर, नानियाँ भी दादियाँ भी, कहते हैं मैं खाने ज़ादे कोहना हूँ और सूरत लिखी हुई। हुजूर हमारी तो शक्लें से आप वाक़फ़ हैं कि हम आपके ख़ानदानी नौकर हैं। और कहते हैं बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है, कहते हैं मेरे माँ बाप के नाम भी आपके रजिस्टरों में लिखे हैं कि हम दरवाज़ा रसूल के ख़ानदानी ग़ुलाम हैं। ये शेर है, ये शेर का हुस्न है। तो आप खूबसूरत अंदाज में हुजूर का जिक्र करें और आप कोशिश करें कि अकीदा ख़राब ना होने पाए, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि ख़राबी लाज़म आए। अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह हमें ईमान पे कायम रखे, ईमान पे मौत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं आपसे एक ऐसे अमल की बात करना चाहता हूं जिसे हम बहुत मामूली समझते हैं, लेकिन क़यामत के दिन यही अमल बहुत से लोगों के लिए सबसे बड़ी हसरत बन जाएगा। ज़रा तसव्वुर करिए, क़यामत का दिन सूरज सरों के करीब है, हर शख्स अपने अमाल का इंतज़ार कर रहा है। किसी के पास पहाड़ों जैसे अमाल हैं और किसी के पास कुछ भी नहीं। अचानक एक शख्स की नेकियों का पल्ला भारी हो जाता है। लोग हैरान होकर पूछते हैं ये कैसे हुआ। इसे बताया जाता है कि ये वो शख्स था जो लोगों के दिल नहीं दिखाता था, मुआफ़ कर देता था और हर छोटे बड़े काम में अल्लाह की रज़ा तलाश करता था। मेरे अज़ीज़ों, हम बड़े बड़े कामों की फ़िक्र करते हैं, मगर कभी एक मुस्कुराहट, एक नरम लहजा, किसी की मदद या किसी को मुआफ़ कर देना भी अल्लाह के यहाँ इतना कीमती हो सकता है कि हमारी निजात का ज़रिया बन जाए। सोचें, अगर आज हम अपने किसी रिश्तेदार से नाराज़ हैं, किसी दोस्त से बात बंद है या किसी गरीब की मदद कर सकते हैं मगर नहीं कर रहे, तो शायद हम अपनी वो नेकी खो रहे हैं जिसकी क़यामत के दिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। आज अहद करें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, वालिदैन के साथ उसने सलूक करें, किसी का दिल ना दुखाएं और हर काम सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। याद रखें, दुनिया चंद दिन की है मगर आखिरत हमेशा की है। अक्लमंद वही है जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी के लिए तैयारी है। अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।